Assalamu alaikum students. Today we are going to study techniques of differentiation. In the previous lectures we have studied about the derivative, equation of tangent line using derivative, differentiable functions, points of non-differentiability, differentiability implies continuity, and some different notations for the derivatives. In the previous lectures, we have studied the definition of derivative in terms of limits. Today we will create some techniques of differentiation so we can easily calculate the derivative of some complicated functions, and we will also study about the higher order derivatives. After completing this lecture, you will learn the techniques to find the derivatives of some complicated functions, and you will also learn how to find the higher order derivatives. Techniques of differentiation. First is derivative of a constant. The derivative of a constant function is 0. That is, if c is any real number, then derivative of c with respect to x is 0. Let's suppose we have a function c. So using definition of derivative, here f of x plus h will be c, क्योंकि आपके पास c कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन हर पॉइंट पे आपको सेम वैल्यू देता है एंड दैट इज c. और माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स आपके पास c है, सो c माइनस c विल बी 0 एंड लिमिट एज h approaches to 0 will be 0. Means the derivative of c with respect to x is 0. अगर आप इसके ग्राफ को डिस्कस करें तो आपके पास ये ग्राफ y इज इक्वल टू c का ग्राफ है, ठीक है. अब डेरिवेटिव आपको टेंजेंट लाइन की स्लोप बताती है, तो अगर आप यहाँ पे इसकी टेंजेंट लाइन को डिस्कस करें, अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट लाइन स्केच करते हैं तो आपके पास हर पॉइंट पे टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल है, ठीक है. तो आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस की स्लोप 0 होती है, तो यहाँ पे टेंजेंट लाइंस की स्लोप बेसिकली 0 है. सो वी कैन से द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. अगर आप फर्स्ट एग्जांपल इसकी देखें, इसमें कुछ हमने कांस्टेंट्स लिए हैं, उसके डेरिवेटिव लेंगे, सो द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ -5 इज 0 एंड द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज 0. आपके पास ये तीनों नंबर्स जो थे ये रियल नंबर्स हैं, तो सो it will have 0 derivative. Second is derivatives of power functions. If n is any real number, then derivative of x raised to the power n is equal to n times x raised to the power n minus 1. Here we have a function f of x is equal to x, here n is 1. So taking its derivative of x with respect to x will be 1 time x raised to the power n minus 1. Here n is 1, so it will be 1 minus 1. So it will be equal to x power 0, and x power 0 is equal to 1. So the derivative of x with respect to x is 1. If we look at its graph, this is the graph of f of x is equal to x. Derivative of any function tells us about its slope of the tangent line at any point. So in this graph, at every point the tangent line has constant slope, that is it have the same slope and that is 1. So the derivative of x with respect to x is 1. Example 2, derivative of x square. Now here n is 2, so the derivative of x square using power function, we have 2 times x raised to the power n minus 1, that is 2 minus 1, and it will be equal to 2x. Derivative of x raised to the power 5, here n is 5, so its derivative will be 5x raised to the power 4. Now here x raised to the power 1 by 2,
n is 1 by 2. So using power function, its derivative will be 1 by 2 times x raised to the power n minus 1, that is 1 by 2 minus 1, and it will be 1 by 2 x raised to the power minus 1 by 2, and finally its derivative is 1 divided by 2 square root x. Now here in this function we have n is minus 7, so its derivative will be minus 7 times x raised to the power n minus 1, and that is x raised to the power minus 8. Next function is x raised to the power 8. Here n is 8, so its derivative will be 8 times x raised to the power 7. Now third rule is derivative of a constant times a function. If f is differentiable at x and c is any real number, then cf is also differentiable at x, and its derivative is c times the derivative of f. यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन किस फंक्शन के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि आप उस रियल नंबर को डेरिवेटिव के बाहर मल्टीप्लाई कर दें और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें. Example 3, we have function 4x cube. Now here the real number 4 is multiplying with x cube. तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को आउटसाइड द डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग x क्यूब का डेरिवेटिव ले लेंगे. यूजिंग पावर फंक्शन x क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 3x स्क्वायर, दैट इज 3 minus 1 will be 2. So 4 multiplied by 3 is 12 and this will be x square. So the derivative is 12x square. In the next example we have the function minus x raised to the power 12. यहाँ पे आपके पास minus 1 basically multiply हो रहा है function के साथ. So we will take out minus 1 outside the derivative and we will take the derivative of x raised to the power 12 and it is 12 times x raised to the power 11 और साथ में ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास फाइनली डेरिवेटिव आ जाएगा. नेक्स्ट फंक्शन इज पाई डिवाइडेड बाय x. सो हियर पाई इज कांस्टेंट. पाई को हम डेरिवेटिव से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और हम 1 by x का डेरिवेटिव ले लेंगे. 1 by x कैन बी रिटन एज x raised to the power minus 1. So using power function, it will be x minus 1 minus 1, that is n minus 1, and this minus 1 will be multiplied with this term. तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस, ये माइनस आपके पास ये वाला माइनस है और ये पाए साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और x power minus 1 is x power minus 2. So it will be the derivative of pi divided by x. The fourth technique is derivatives of sums and differences. If f and g are differentiable at x, then so are f plus g and f minus g, and derivative of f plus g will be derivative of f plus derivative of g, and the derivative of f minus g will be equal to derivative of f minus derivative of g. यानी अगर आपके पास दो फंक्शन का सम या डिफरेंस आ जाता है, हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, so what we will do, we can derivative it individually and then we can sum and we can take difference of their derivatives. Example 4, we have to differentiate this function, that is 2x raised to the power 6 plus x raised to the power minus 1. Now here we have the sum of two functions. One function is 2 times x raised to the power 6 and second function is x raised to the power minus 9. So we will apply derivative individually on both of the functions, and the derivative of this function will be यहाँ पे constant 2 multiply हो रहा है तो 2 को outside the derivative हमने लिख दिया, and we have differentiated x raised to the power x and it is 6
times x raised to the power 5 using power rule. नेक्स्ट फंक्शन इज x रेज टू पावर -9, सो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे यूजिंग पावर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर में आपके पास आ जाएगा -9 -1 यानी n-1 हमारे पास ये बन जाता है. सो फाइनली द डेरिवेटिव इज 12, दिस इज 6 multiplied by 2 is 12, x raised to the power 5 plus minus is minus and it will be 9 x raised to the power -10. Next function is 1 minus 2 times square root of x. We have to differentiate this function. यहाँ आपके पास दो functions का difference है. We will apply derivative on both the functions individually. First function आपके पास 1 है and second function आपके पास 2 times square root of x है. So 1 is constant and derivative of any constant with respect to variable is always 0. Second function आपके पास 2 raised to the power x है, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 को हम डेरिवेटिव से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे स्क्वायर रूट x को. स्क्वायर रूट x का मतलब क्या है, x raised to the power 1/2. ठीक है, तो यूजिंग पावर रूल यहाँ पे आपके पास 1/2 -1 इज -1/2 और ये पावर हमारे पास साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास पावर मल्टीप्लाई होगी, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा इस 2 के साथ. सो वी आर लेफ्ट विद -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x. Example 5, find the derivative, find dy by dx if y is this function. अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स हैं जिसमें आपके पास सम भी आ रहा है और डिफरेंस भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे सम एंड डिफरेंस वाला रूल यूज़ करेंगे. हम डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे. अब हमने हर टर्म पे इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है. ठीक है, ये इस तरह से इंडिविजुअली हमने हर टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया. इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डिफरेंशिएट दीज फंक्शंस. सो यहाँ पे आपके पास 3 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर हम लिख लेंगे और x पावर 8 का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 8 टाइम्स x पावर 7. ये आपके पास n-1 होगा विच इज 8 - 1 इज 7. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम आउटसाइड द डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे और x क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर. हियर n इज 3, सो n-1 विल बी 3 - 1 दैट इज 2. नेक्स्ट आपके पास माइनस है और डेरिवेटिव है 5x का, तो 5 को हम आउटसाइड द डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. So next we have constant function, so derivative of constant function is always 0. So the derivative of given function is 24 times x power 7, 6 times plus 6 times x square minus 5. So in the next example, we have to find a point. We have to find points if any does the graph of this function have horizontal tangent line. In this example, we have to find the points if exist, the points where the tangent line is horizontal. हमने जब स्लोप्स वाला लेक्चर हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे आपके कर्व पे टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की बात करते हैं तो हम डेरिवेटिव की बात कर रहे होते हैं, यानी हमने क्या फाइंड करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, यानी इस फंक्शन के टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, so slope of horizontal line is 0, that is dy by dx is equal to 0.
सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फंक्शन का। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² आ गया। दिस इज -3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 and derivative of 4 will be 0 as this is constant and the derivative of constant is 0. Next we will use the derivative is 0 because we have to find the point where the tangent line is horizontal and the slope of tangent line is derivative, and slope of any line, any horizontal line is 0, so derivative is 0. So here derivative is 3x² minus 3. We have taken this as equal to 0. Now 3 यहाँ पे हमने बोथ साइड पे 3 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास ये आ गया x² minus 1. So बोथ साइड पे हमने 1 को ऐड किया, so we have x² is equal to 1 and x is equal to plus minus 1. यानी इन पॉइंट्स पे आपके फंक्शन की टेंजेंट लाइंस जो हैं वो हॉरिजेंटल होंगी. देयर आर 2 पॉइंट्स, x इज इक्वल टू 1 एंड -1. अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखें तो ये आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ है. यू कैन सी हियर दिस इज 1, x इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू 1 पे आप जब टेंजेंट लाइन स्केच कर रहे हैं तो ये हॉरिजेंटल है. सिमिलरली एट x इज इक्वल टू -1, अगर आप -1 पे ग्राफ चेक करते हैं तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन स्केच कर रहे हैं तो ये टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल है. तो जब भी आपने हॉरिजेंटल टेंजेंट लाइन के लिए पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि किस पॉइंट्स पे आपके फंक्शन की टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल होगी, आपने सिंपल क्या करना है, आपने डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देना है और आप वहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी और पॉइंट्स फाइंड हो जाएंगे. The derivative of a product, if f and g are differentiable at x, then so is the product f g, and its derivative is defined as f of x derivative of gx plus g of x derivative of f of x. यानी अगर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव आप किस तरह से लेंगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, then plus second function as it is and derivative of first function. So here is the example 7. Find dy by dx if y is equal to this function. Now you can see here we have the product of two functions. यहाँ पे हम product rule use करेंगे. हमने derivative apply किया, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हमने लिख दिया 4x² minus 1 और यहाँ पे हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया एंड दिस डेरिवेटिव विल बी 21x² प्लस, sorry this is +1, ये माइनस नहीं है, this is +1. and next we have second function as it is and derivative of this function is 8x. यहाँ पे अब इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है. तो हमारे पास ये फंक्शंस आ जाते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आ जाती है और नेक्स्ट टू फंक्शंस को मल्टीप्लाई करने से ये टर्म्स आ जाती है. आफ्टर सिंप्लीफाइंग द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज 140 times x raised to the power 4 minus 9x² minus 1. Derivative of a quotient. If f and g are both differentiable at x and if g of x is not equal to 0, then f divided by g is differentiable at x and the derivative is defined as denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of
डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर आपके पास दो फंक्शन का कोशेंट आ रहा है और आपके पास कोशेंट 0 के इक्वल नहीं है फॉर ऑल एक्स, तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। In this example 8, we have to differentiate this function and यहाँ पे आपके पास दो functions का quotient है, एक function ये है और दूसरा function ये है। So using quotient rule, we have denominator as it is, derivative of numerator as it is, derivative of denominator and divided by square of denominator। ये देख लें, ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो गया, ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हो गया। नेक्स्ट आपके पास x² - 5 एज इट इज आ गया और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 4 माइनस 4x + 1 एज इट इज आ गया एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 2x और बाकी टर्म्स हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट आफ्टर सिंप्लीफाइंग we get this function, so this is the derivative of the given function. Now higher order derivatives. In the previous slides we have discussed about the first order derivative, जहाँ पे हम सिर्फ फंक्शन को एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हमें फंक्शन को एक से ज़्यादा दफ़ा भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द नोटेशन फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये किस तरह से डिफाइन होते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन f of x, then first order derivative is the derivative of f. What will be the second order derivative? Second order derivative basically is the derivative of first order derivative। ठीक है, यानी जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा और इसको हम इस तरह से नोटेशन देते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड ऑर्डर को, तो ये आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम जनरली nth ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफाइन करें तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास अगर हम d/dx की नोटेशन दें तो इस तरह से डिफाइन होगा, और अगर हम इस नोटेशन में लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। और अगर आपने किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x0 पे हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो हम x की जगह x0 लिखेंगे। एग्जाम्पल 9 में आपको एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, और इसके हमने डिफरेंट डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 12x³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 प्लस 0। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया है। अब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 36x² and derivative of 6x² will be 12x and derivative of 2x is 2 and derivative of 4 is 0। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आपके पास 72x आ गया। 12x को डिफरेंशिएट किया तो इट विल बी 12 और 2 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ दी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर अब हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो इट विल बी 72 और 12 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
अगर हम इसको फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब देखिए, आप जब फिफ्थ ऑर्डर के बाद जितने भी डेरिवेटिव्स लेंगे तो वो आपके पास सारे 0 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें आपका फंक्शन की डिग्री क्या थी, फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल था आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव तक हमारे पास नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव आ रहा है, फिफ्थ डेरिवेटिव पे आपके पास डेरिवेटिव 0 आना शुरू हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज द नोटेशन फॉर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव where y is equal to this, where a b c are constant। ठीक है, हमने यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, हम लोग इंडिविजुअली हर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हर फंक्शन पे हमने इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 4a x क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 2bx एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। टू कैलकुलेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी विल डिफरेंशिएट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे फिर से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, हमने अब हर टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। सो डेरिवेटिव ऑफ 4ax क्यूब विल बी 12ax स्क्वायर एंड 2b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा और x का डेरिवेटिव आपके पास 1। ठीक है, तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 12ax स्क्वायर प्लस 2b। नाउ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी हैव अप्लाइड डेरिवेटिव ऑन ईच टर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरह से। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 24ax, ये 2 आपके पास 12 से मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा और यहाँ पे पावर फंक्शन यूज हुआ है। और डेरिवेटिव ऑफ 2b इज 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 24ax। In the next example we have to find the second order derivative of y at x is equal to 1। अब हमने किसी पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया फंक्शन पे, इंडिविजुअली हर फंक्शन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपके पास 6 एज इट इज़ आ जाएगा और x5 का डेरिवेटिव आपके पास 5 टाइम्स x पावर 4 एंड 4x स्क्वायर में 4 एज इट इज़ आ गया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ गया। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी 30x4 minus 8x। So now next we have to find the second order derivative। हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 120 टाइम्स x क्यूब एंड द डेरिवेटिव ऑफ माइनस 8x इज 8। तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह 1 को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112। So second order derivative at x is equal to 1 of the given function is 112। Now summary। इन सब लेक्चर्स में हमने कुछ टेक्निक्स को लर्न किया है। जब हमारे पास एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। अगर हमारे पास दो फंक्शंस का सम आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे,
दोनों फंक्शंस को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके ऐड कर देंगे। इसी तरह प्रोडक्ट अगर आ जाता है आपके पास दो फंक्शंस का, तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर हमारे पास कोशेंट आ जाता है, यहाँ पे कोशेंट में आपके पास न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर आपके पास जी है, तो ये बेसिकली आपके पास ये कोशेंट रूल यूज़ कर किया है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। और कोशेंट रूल हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये यूज़ करके आपके पास ये फार्मूला बन जाता है। इसी तरह अगर आपका फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हमने सी यानी कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर लिखना है और हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। ये जिस तरह आपने सम के लिए डिफ़ाइन किया था, सेम आपने डिफरेंस के लिए भी रूल डिफ़ाइन किया हुआ है। और ये आपके पास पावर रूल है। अगर आपके पास x की कोई पावर आ जाती है, तो आपने इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे और x की पावर हमारे पास आ जाएगी r-1। यहाँ पे हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह से डिफाइन होगा। So these are some practice questions। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। आपको एक्सरसाइज 2.3 ओवर डेंटन की बुक जो मैंने अपलोड की हुई है, उसमें एक्सरसाइज 2.3 के 1 to 24 एंड 33 to 48 क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, और इसके अलावा 2.4 एक्सरसाइज से आपने 1 to 24 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। आई होप कि आप लोगों को टेक्निक्स ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो ये एक्सरसाइज ट्राई करें। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस विद योर रिस्पेक्टिव टीचर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।